Assalamu alaikum students. This is my fourth lecture on poetics and today I'm going to discuss very important element of tragedy, that is plot. So let's start this lecture. Before starting the new topic, let's have some revision of the previous topics. Like up till now, we have learned the definition of tragedy and its elements, and in this slide again, I'm going to discuss the same thing like the tragedy, the definition of tragedy, that tragedy is the imitation of an action that is serious and has magnitude that is complete in itself. So tragedy is the imitation of an action. Action represents the plot of tragedy, and its magnitude and its completeness reflects the length. It indicates the length of the tragedy. स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे अगेन मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, एक रिवीजन दे रही हूँ आप लोगों को कि ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। ये लाइन जो है ये प्लॉट को करती है कि प्लॉट जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो सोल है ट्रेजेडी की, ये उसको रेफर करती है। एंड द मैग्नीट्यूड एंड द कंप्लीटनेस इंडिकेट्स इट्स लेंथ, जो कि हम उसकी बिगनिंग मिडिल एंड एंड जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो वो कंप्लीटनेस है कि उसकी प्रॉपर बिगिनिंग है, प्रॉपर मिडल है एंड देन एंड। And in language with pleasurable accessories, this line indicates the diction, the importance of language. ठीक है, and each kind brought in separately in the various parts of the works like melody and in a dramatic, not in a narrative form. This indicates the character, and with incidents arousing pity and fear, it indicates the thought of tragedy wherewith to accomplish its catharsis of such emotion. And this line, the last line, it indicates spectacle. So today we are going to discuss plot, and one by one I'll give you lecture on the length, on the diction, on the melody, on the character, on the thought and spectacle. ये सारे topics जो हैं, सारे elements जो हैं, इन इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने हर एक लेक्चर में। तो इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस प्लॉट। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ प्लॉट को ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लॉट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगेन आई वांट यू टू मेमोराइज द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी with the with the ways of imitation, like the object of imitation में हम plot, character और thought को include करेंगे, and in medium of imitation the diction and the melody are included, while in mode spectacle is included. ये 6 element हैं। objects में plot, character और thought है, medium में diction and melody है, and mode में spectacle है, and you have to memorize the 6 elements with the ways of imitation. ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, मोड कौन से हैं, और आपको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको इसकी डिस्क्रिमिनेशन है कि ऑब्जेक्ट में कौन सा एलिमेंट है, मीडियम में कौन सा और मोड में कौन सा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। In chapter number 5, page number 19 and 20, you will see the explanation, the brief explanation of each element. हर element को briefly discuss किया गया है, तो हम इसको थोड़ा सा study कर लेते हैं। Like plot, the first element of tragedy. Plot is a combination of incidents in it, the most powerful elements of attraction in tragedy. The first essential, the life and soul of tragedy is plot. Plot क्या है? It is a combination of incidents, ठीक है, combination of actions
कॉम्बिनेशन ऑफ सीन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट्स, तो इन सब को कंबाइन करके एक प्लॉट बनता है। एक स्टोरी है ना, एक फॉर्मेट है, तो इस सब का कॉम्बिनेशन जो है प्लॉट है। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ अट्रैक्शन। अगर प्लॉट अच्छा हो तो कैरेक्टर्स जो हैं वो भी सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ प्लॉट। प्लॉट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर प्लॉट नहीं इतना अच्छा होता, प्लॉट में जान नहीं होती, तो चाहे कैरेक्टर हम किसी भी कैरेक्टर को ले आए वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और अगर प्लॉट आपका बहुत अच्छा है और कैरेक्टर आपके कॉमन भी ले लिए जाएं उस सीन के लिए, उस एक्टिंग के लिए, तो भी उस कहानी में बहुत जान होती है, बहुत वर्थ होती है, बहुत अट्रैक्शन होती है। So it is the first essential and the life and soul of tragedy. इसीलिए इसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड इट इज़ कंसिडर एज अ लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी, कि ये उसका फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों तरह से ये उसकी इम्पोर्टेंस रखता है। उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसके एक्ट्स क्या हैं और उसके अंदर स्टोरी क्या है, इसीलिए उसको लाइफ एंड सोल कहा गया है। द सेकेंड वन इज द कैरेक्टर. It comes second, and the character reveals the moral purpose of the agent. मॉरल पर्पस यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जो कैरेक्टर की साइकी है, उसकी मोरालिटी है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो ही कहानी को आगे बढ़ाएगी। उसके अंदर फ्लॉ होगा या उसके अंदर जो चेंज आएगा, उसके फॉर्चून में चेंज आएगा, उसकी लाइफ में जो चेंज आएगा, वो ही डिटर्मिन करेगा प्लॉट को। And the third element of tragedy is thought. The power of saying whatever can be said or what is appropriate for the occasions, proving or disapproving particular point or enunciating some universal proposition. Thought क्या है? Thought is the power of saying, कि आपकी सोच आपको किस डायरेक्शन में लेके जाती है। जैसे हम कैरेक्टर के मॉरल पर्पस की बात कर रहे थे, तो उसकी जो मॉरल पर्पस है वो जो है उसकी थॉट से ड्रॉ किया जाएगा ना। वो किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स देता है उस जो डिफरेंस आ रहा है, जो चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट का, या जो स्टोरी में चेंज आ रहा है, तो उसकी सोच उसको किस तरह से लेके जाती है। लाइक एवरी एक्शन हैज सम रिएक्शन। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल सिचुएशन है, जब वो चेंज होगी तो वो कैरेक्टर की थॉट उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ सेइंग वट एवर कैन बी सेड, कि जो उस सिचुएशन में कहा जाना चाहिए उसकी पावर होना, उसके लिए डिटर्मिनेशन होना, उसका कॉन्फिडेंस होना यहाँ पे मैटर करता है। And the second part is that proving or disproving particular point or enunciating some universal proposition. Proposition is the opinion and enunciating means clearly expressed his thought. किसी भी चीज़ को क्लियरली बोलना, जो आपके दिल में है आप उसको क्लियरली एक्सप्रेस करो, किसी भी ओपिनियन को, तो ये भी आपकी थॉट का पार्ट है, मीन्स ये कैरेक्टर की थॉट का पार्ट है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन is the fourth among the literary element is the diction of the personages, as before explained, the expression of their thought in words, which is particularly the same thing with verse as with prose. Diction जो है that is the language, वो वाली लैंग्वेज यूज करना जिसके थ्रू आप एक्सप्रेशन दें अपनी थॉट्स का। सो दिस इज the language, and melody is the greatest of the pleasurable accessories of tragedy. जो हम definition में बोलते हैं ना कि addiction के बाद के pleasurable accessories हैं, तो वो melody है, rhythm है। ठीक है, and the last one is the spectacle. Though an attraction is the least artistic of all the parts, spectacle को बहुत
6 एलिमेंट में सबसे लास्ट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, इसको लीस्ट इम्पोर्टेंस दी गई है एंड हैज़ लीस्ट टू डू विद द आर्ट ऑफ पोएट्री, कि आर्ट ऑफ पोएट्री के साथ इसका बहुत कम कनेक्शन है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है जो लास्ट है, जिसमें कथारसिस है, पिटी एंड फेयर है, तो वो स्पेक्टेकल के थ्रू ही आता है ना, कि वो उस स्पेक्टेकल का जो एक्सप्रेशन होगा कथारसिस का, वो थ्रू स्पेक्टेकल ही आएगा. सो this tragic effect is quite possible without the public performance and the actor, and besides the getting up of the spectacle is more a matter for the costumer than poet. डेकोरेशन से रिलेट करता है ना, इसलिए तो ये पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए स्पेक्टेकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Here I want to discuss the definition of plot. Plot is a series of events existing in a well-knit design or pattern. हमने प्लॉट के बारे में फ़िलहाल जो पढ़ा है वो उसको डिफाइन करता है, उसकी इम्पोर्टेंस को, कि प्लॉट कितना इम्पोर्टेंट है. जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हमने पढ़ा है दैट प्लॉट इज़ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ अट्रैक्शन, और हमने पढ़ा है दैट प्लॉट इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी. बट व्हेन यू आर गोइंग टू डिफाइन द term plot है क्या, then you have to write this definition that plot is a series of events existing in a well knit design or pattern. plot जो है वो एक सीरीज है इवेंट्स की, वो इवेंट्स जो एक्शन पे बेस्ड है उनका सीक्वेंस होगा, एक सीरीज होगी, एक पैटर्न होगा और एक डिज़ाइन होगा जिसमें वो बहुत अच्छे से फैब्रिकेटेड है, वेलनेट है, जॉइंट है, कंबाइंड है, तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस ऑर्गेनाइज किया हुआ होगा, तो वो प्लॉट कहलाता है, राइट. सो इन दिस पोएटिक्स अरिस्टोटल आंसर्स अ क्वेश्चन कि प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट्स की क्या टाइप्स हैं, प्लॉट को किस तरह से होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो वो ये कहता है व्हाट is the poet to aim at and what is he to avoid in constructing his plot. पोएट को किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ प्लॉट, प्लॉट को बनाते हुए उसके माइंड में क्या हो कि मैंने कैसी स्टोरी बनानी है, किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को अवॉइड. तो यहाँ पर जो बाकी स्लाइड्स हैं वो बहुत डिटेल से उसने बताया है कि किस तरह से प्लॉट को होना चाहिए. तो इस स्लाइड में सिर्फ मैं 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने डिस्कस किए हैं कि प्लॉट को कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. There are 3 forms of plot to be avoided. कौन कौन सी 3 forms है? Number 1, a good man must not be seen passing from happiness to misery. The second one is a bad man from misery to happiness. तो ये उसकी ऑपोजिट बात हो गई जो फर्स्ट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एक बहुत अच्छा इंसान जो हीरो है, अगर हम उसको प्लॉट में ये दिखाएं, उसको स्टोरी जो है वो इस पे बेस करें कि उसकी जो हैप्पी लाइफ है वो किस तरह से मिजरेबल हुई है, तो ये भी एक अच्छा प्लॉट नहीं होगा. सो अ पोएट शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्लॉट. द सेकेंड वन इज ऑपोजिट ऑफ दैट, कि अगर हम गुड मैन को इस तरह से हैप्पीनेस टू मिजरी में देखेंगे और बैड मैन को मिजरी से हैप्पीनेस में देखेंगे, वो भी एक बैड प्लॉट कंसिडर होगा, राइट. And the third one is an extremely bad man be seen falling from happiness into misery. Extremely bad man यानी विलन, ठीक है. तो हीरो और विलन की जो स्टोरी इसमें है उसकी जो एक पैटर्न बताया है प्लॉट का, तो अरिस्टोटल ने इन 3 प्लॉट्स को पोएट को रेकमेंड किया है, सजेस्ट किया है दैट अ पोएट शुड अवॉइड
these three types, these three forms of plot. Students, as we have read that plot has the key important in tragedy. Plot is the primary element of tragedy. It is considered as life and soul of tragedy. ठीक है, हमने पढ़ा है ना, प्लॉट जो है इज कंसिडर्ड एज लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी. इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है ऑब्जेक्ट्स में. द फर्स्ट एलिमेंट इज प्लॉट. ऐसे ही है. ओके, नाउ I'll tell you that there are two types of plot according to Aristotle. Aristotle ने इसकी दो इकसाम बताई हैं, two types बताई हैं. The first one is simple plot and the second one is complex plot. अब इसमें वो किस तरह से इनको कैटेगराइज करा है प्लॉट को. In page number 29, chapter number 10, he says that I call simple when the change in the hero's fortunes takes place without peripety or discovery. Simple plot according to Aristotle, ऐसा प्लॉट जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, जिसमें कोई सडन चेंज नहीं है, जिसमें कोई न्यू डिस्कवरी नहीं है. और कॉम्प्लेक्स प्लॉट में ये सब कुछ मौजूद है. ठीक है. सिंपल प्लॉट इज the simple actions. एक ऐसा सिंपल एक्शन जिसमें कोई भी सडन चेंज नहीं है, जिसमें कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं है. बट इन कॉम्प्लेक्स प्लॉट इट इन्वॉल्व्स वन और द अदर और बोथ. पैरिपिटी और डिस्कवरी दोनों या दोनों में से एक इन कॉम्प्लेक्स प्लॉट मौजूद होते हैं. ठीक है. सो सिंपल प्लॉट हैव continuous movement and involves no violent change. कोई sudden unexpected कोई violent change simple plot में नहीं है. While in complex plot it involves violent changes arises out of peripety and anagnosis. Anagnosis भी जो है it's the meaning of discovery के meaning में आता है. ठीक है. So this is the word which Aristotle used as discovery, anagnosis. This is the first type of plot, simple plot, and it is mentioned on chapter number 9, page number 27, that simple plots and actions are episodic are the worst. Aristotle ने सिंपल प्लॉट को डिस्करेज किया है. क्यों डिस्करेज किया है? बिकॉज द सिंपल प्लॉट्स एंड द एक्शंस आर इन पार्ट्स, एपिसोड फॉर्म में है. मीन्स सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है. मीन्स के वो सीक्वेंस या वो अट्रैक्शन नहीं रहती है ना एपिसोड में, तो वो एपिसोडिक होते हैं. उसमें उतना थ्रिल नहीं होता, उतना चार्म नहीं होता उस प्लॉट में. उसकी और भी रीजंस बताई हैं आगे जाके. बट सिंपल प्लॉट जो है, द एक्शंस और जो थ्रिल है वो उतना चार्मिंग नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स प्लॉट में होता है. सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस टाइप ऑफ प्लॉट इज वर्स्ट. ही सेज अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, वो कह रहा है I call a plot episodic when there is neither probability or necessity in the sequence of its episodes. Now he is giving us the reason कि क्यों worst है, क्यों बुरा है simple plot, because उसमें probability और necessity का element नहीं होता, वहाँ पे ये sequence नहीं होता. Probability and necessity क्या है? Probability or necessity means that it is like the character, कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं. हमारा कैरेक्टर जो है एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है ना, तो प्रोबेबिलिटी इज द एलिमेंट जिस तरह हम बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं, जो यूनिवर्सल नेचर है. किसी भी एक्शन की, किसी भी बात को लेके हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी.
ठीक है। एंड नेसेसिटी क्या है कि हमें जो कुछ फोर्स किया जाता है, जो हमें कहा जाता है कि ये चीज़ हम पे इम्पोज्ड है और हमने उसका रिएक्शन देना है, ठीक है, तो वो नेसेसिटी है। तो ये दोनों एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी का एलिमेंट सिंपल प्लॉट में नहीं होता। दैट इज वाई अरिस्टोटल कंसिडर्स सिंपल प्लॉट एज द वर्स्ट वन। इसको मैंने थोड़ा डायग्राम की सूरत में लिखा है दैट फर्स्ट काइंड ऑफ प्लॉट is the bad plot because it is episodic and there is no factor of probability or necessity in it, right? So in a simple plot the hero's fortunes pass direct from happiness to misery or vice versa. तो हमने जो प्लॉट अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे कि अरिस्टोटल ने 3 फॉर्म्स ऑफ प्लॉट दिए थे जिसको अवॉइड करना था, तो सिंपल प्लॉट में वो दोनों टाइप्स जो है फर्स्ट वाली वो दोनों इसमें डिस्कस हो रही है ना। इन द सिंपल प्लॉट द हीरोज फॉर्च्यून्स पास डायरेक्टली फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी और मिजरी टू हैप्पीनेस, वाइस वर्सा मीन्स ऑपोजिट टू इट। तो ये सिंपल प्लॉट होगा और ये उतना अट्रैक्टिव या इतना स्ट्रॉन्ग प्लॉट कंसिडर नहीं किया जाएगा। और क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी का एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ वाई द सिंपल प्लॉट हैज़ द अनइन्वॉल्व्ड एक्शन, कि उसके एक्शन जो हैं वो उतने ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं होंगे, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उतने ज़्यादा सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। अनइन्वॉल्व्ड मीन कि एक एक्शन एक एपिसोड में एक कहानी है, दूसरे एपिसोड में कोई और कहानी होगी। अनइन्वॉल्व्ड एक्शन के आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, आपस में उनका जो सीक्वेंस है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एक तरह के डिसऑर्गेनाइज्ड एक्शन होंगे, ठीक है। सो जो हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट के नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट 3 उसके पार्ट्स हैं, पैरिपिटी, एनाग्नोसिस एंड सफरिंग। तो ये तीनों पार्ट भी सिंपल प्लॉट में नहीं है। सो द एब्सेंस ऑफ पैरिपिटी, एनाग्नोसिस एंड सफरिंग। तो एपिसोडिक प्लॉट जो है सिंपल प्लॉट, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं दैट व्हाई इट इज वर्स्ट। Now it is the second type of plot, complex plot, and this type of plot is discussed on page number 29 of chapter number 10 and 13. Complex plot जो है, this is the second type of plot, और इसमें हमने जैसे सिंपल प्लॉट में पढ़ा कि वहाँ पे किस चीज़ का एब्सेंस है और क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स प्लॉट को बेस्ट प्लॉट बनाती है। क्योंकि as Aristotle said that poet is maker of plots because of the unity of plot attracts the reader. प्लॉट जो है उसको लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है और ये अट्रैक्ट करता है रीडर को, इसलिए प्लॉट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यूनिटी ऑफ इंसिडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी ऑफ एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। That is why according to Aristotle complex plot is the best plot and it has 3 parts. The first one is peripety, second one discovery, and the third one is sufferings. It comprises series of events with peripety, discovery and sufferings. कॉम्प्लेक्स प्लॉट में सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, सीरीज ऑफ एक्शंस होता है with this 3 kinds, with these 3 elements of complex plot: peripety, discovery and suffering. And it is formed of an involved action. सिंपल प्लॉट में था अनइन्वॉल्व्ड एक्शंस थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लॉट में इन्वॉल्व्ड एक्शंस होंगे। वो इन्वॉल्व्ड कैसे होंगे? लिंक्ड टुगेदर, जिसमें पैरिपिटी, डिस्कवरी और सफरिंग होंगे। और इन्वॉल्व्ड ऐसे होंगे कि आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, स्कैटर्ड नहीं होंगे। जैसे हमने कहा कि उसमें कलेक्शन ऑफ इवेंट्स होगा, कलेक्शन ऑफ एक्शंस होगा, लेकिन यहाँ पे
कलेक्शन नहीं होगा, बट एक प्रॉपर ऑर्डर होगा, प्रॉपर सीक्वेंस होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे। इसीलिए इन्वॉल्व का वर्ड आया है कि वो आपस में वो तमाम इंसिडेंट्स, तमाम एक्शंस इंटरलिंक्ड होंगे। एंड द इंसिडेंट्स आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए न्यू है, प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। The laws of probability and necessity, जो इंसिडेंट्स हैं, जो एक्शंस हैं, ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी से जुड़े होंगे। अब प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी क्या है? अरिस्टोटल lays great importance on laws of probability and necessity all through the poetics. पोइटिक्स में उसने इस लॉ को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया है। So, and this is in keeping with his contention that plot should be present a unified whole. वो तभी लिंक्ड रहता है, तभी इन्वॉल्व रहता है, तभी ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ऑर्डर में रहता है, और उसको सब एक्शंस मिल के यूनिफाइड होल बनाते हैं प्लॉट को। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी पे। प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट अ कैरेक्टर मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद ह्यूमन नेचर आइदर थ्रू प्रोबेबिलिटी। जो हमारी ह्यूमन नेचर है, हम उसके अकॉर्डिंगली जब कोई रिएक्शन देते हैं, कोई रिस्पॉन्स देते हैं अपने एक्सटर्नल एक्शंस का, जो हमारे साथ हो रही होती है हमारी सिचुएशन में, उसको हम बीइंग अ ह्यूमन, जो हमारी ह्यूमन नेचर है, जो हमारी फितरत है, उसके अकॉर्डिंगली जब हम बिहेव करते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि अच्छा आपने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, तो जो ट्रेजेडी होगी, जो प्लॉट होगा, जो ट्रेजेडी होगी, तो उसमें जो एजेंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, विलन है, तो वो अपनी ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। जैसा अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी है, जैसे ईडिपस रेक्स में है, तो ईडिपस उस तरह से जो बिहेव कर रहा था, दैट इज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर। ठीक है, या कोई भी एक ट्रेजेडी जो आपने पढ़ी हो, उसमें जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें कोई इमेजिनेशंस नहीं होती, उसमें रियलिटी बेस्ड दिखाते हैं, जो हमारी नेचुरल रिस्पॉन्स होता है उस ट्रेजेडी की तरफ, पिटी है, फेयर है, हमारा रोना है, हंसना है, जो भी एक जो ह्यूमन नेचर हमारी है, उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव कर रहे होते हैं। ये है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। But law of necessity is that what most of us would do, or necessity what we are forced to do. जो चीज़ हम पे इम्पोज की जाती है, हमें परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, हम उसको नेचुरल वे में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते ना, एक नेचुरल वे में करना इज प्रोबेबिलिटी, बट व्हाट वी आर फोर्स्ड टू डू, कि हमें उस तरह से रिएक्ट करना है आउट ऑफ द ह्यूमन नेचर। हमें या तो बहुत अच्छे हैं हम, या बहुत बुरे हैं। लाइक द ईडिपस का जो लास्ट एक्ट था, व्हेन ही प्लग्ड हिज आईज, अपनी आंखों को वो प्लक आउट कर देता है, व्हेन ही केम टू नो द रियलिटी, तो उस टाइम वो जो एक्ट था वो सब ह्यूमन नेचर नहीं करते। ऐसा ही है ना, सब मेजॉरिटी जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बट जो हीरो का एक्ट होगा, जो एक स्पेशल एक्ट होगा जिसकी वजह से उसको हीरो बनाया जाता है, यस, वो स्पेशल एक्ट जिसकी वजह से विलन को विलन बनाया जाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो नेसेसिटी में आती है, जो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हीरो को, प्रोटैगनिस्ट को, या उस विलन को परफॉर्म करनी होती है। तो ये फर्क है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी में। एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। The first one is peripety, second one is anagnorisis, third one is suffering. Peripety. Peripety is basically a Greek word. It means reversal.
reversal is the turning point in the drama, and this term is defined on page number 28 of chapter number 10 and 12. Now see the textual lines. Peripety has often been interpreted to mean the reversal of the agent's intention. Peripety को इंटरप्रेट इस सेंस में किया जाता है कि जब टर्निंग पॉइंट आए, जाए ट्विस्ट आए इन ट्रेजेडी, जब एक प्लॉट एक सीक्वेंस से आ रहा है तो आपको पता है कि हर प्लॉट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है. So, the situation in which the consequence of the hero's action is the opposite of what he intended. यानी वो एक्शन जिसके बारे में हीरो ने ये सोचा होता है कि ये चीज ऐसे होगी और वो वैसी नहीं होती. रिवर्सल मीन्स द टर्निंग पॉइंट, चेंज आ जाता है ड्रामे में. या एक सिंपल प्लॉट है, सिंपल स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर जो आपने सोचा होगा वैसा नहीं होता और एक ट्विस्ट आता है और ड्रामा में नया मोड़ आता है, एक नई जिद्दत आती है, तो जिससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अच्छा ये अब ऐसे हो गया तो आगे कैसे होगा. तो इस पॉइंट को, इस रिवर्सल को, इस ट्विस्ट को, इस टर्निंग पॉइंट को पैरापिटी कहते हैं. द सेकेंड वन इज एनाग्नोसिस. Anagnorisis का मीनिंग है डिस्कवरी, एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस वर्ड. दिस इज द ग्रीक वर्ड. Anagnorisis means discovery. Now discovery is, as the very word implies, a change from ignorance to knowledge and thus to either love or hate in the personages marked for good or evil fortune. And this term is explained on page number 30, chapter number 11. इसको हम डिटेल में, इसकी काफ़ी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं जो अरिस्टोटल ने डिस्कस किया, हम उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, डिस्कवरी इज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. डिस्कवरी मीन्स कि वो ट्विस्ट जो आएगा ट्रेजेडी में या नया मोड़ आएगा, वो एक तरह की डिस्कवरी है. उसमें डिस्कवरी में जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें ये है कि कुछ जो एक गेस होते हैं, हम जब कहानी को देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम खुद से भी कुछ ना कुछ एज्यूम कर रहे होते हैं कि अच्छा ये स्टोरी ऐसे जा रही है तो ये ऐसे होगा. लेकिन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं वो भी एक जिस फ्लो में जा रहे होते हैं और जब उसमें सडनली एक चेंज आता है तो वो पैरापिटी होता है. डिस्कवरी ऑडियंस के लिए भी होता है, डिस्कवरी उन कैरेक्टर्स के लिए भी होता है. जब उस कहानी में न्यू ट्विस्ट आता है और उनको एक नई बात पता चलती है, और वो जो नयापन आता है, जो नई बात पता चलती है, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज जो है, वो डिस्कवरी के मीनिंग में आता है. ठीक है. उससे आप अगर किसी कैरेक्टर को बहुत पसंद कर रहे होते हैं तो आप उसको बुरा समझना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं इसको अच्छा समझ रहा था, यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो डिफरेंट हो गई है और ये कैरेक्टर जो है उसकी इविलनेस सामने आ गई है. तो वो आपकी गुडनेस या इविलनेस या उसकी लाइकिंग और हेट पे भी डिपेंड करता है. तो डिस्कवरी मीन्स कि आपकी जो एक सोच है उसको रिवाइज कर देता है, उसको न्यू कर देता है. उस रिवर्सल जो है वो भी इसके मीनिंग में आता है, डिस्कवरी के मीनिंग में. जैसे चेंज इन द फॉर्च्यून, और डिस्कवरी आपकी उस सोच, उस रिवर्सल के ऊपर जो बेस करेगी. कहानी में नयापन आएगा तो उस वजह से वो आप नया जो डिस्कवर करेंगे, दैट इज एन अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट. And the third one is suffering. This is the third part, and which we may define as an action of destructive or painful nature. Suffering means कि जो गुड कैरेक्टर है या बैड कैरेक्टर है, अगर गुड कैरेक्टर को सफरिंग मिलेगी तो यू फील पिटी, यू फील सिंपथी फॉर हिम और हर. बट अगर इविल कैरेक्टर को सफरिंग मिलेगी तो वो आपके लिए एक सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट लेके आएगा. अगर वो इविल नेचर पर्सन है, विलन है या वैम्प है, तो आप उस पर सेटिस्फाई फील करेंगे कि ठीक है, ये इसका एंड ऐसे ही होना चाहिए था. सच एज द मर्डर्स ऑन द स्टेज
tortures, woundings, and the like. This is discussed on page number 33 of chapter number 13. Sufferings जो कि एक obvious word है. Good characters पे you feel pity and fear, but on the evil character you feel satisfaction. Anagnorisis, discovery from the ignorance to the knowledge, discovery from, you can say, the discovery of truth and the discovery of the true nature. And peripety is the change and twist and reversal of the plot. ये 3 elements हैं जिसके ऊपर complex plot base करता है, and it is the source of its attraction also. Students, these are the textual lines. ये textual lines हैं just to define peripety, anagnorisis, suffering. ये 3 part हैं, important part हैं plot के. ये textual lines हैं. In the next slide I am going to explain these textual lines. आपके concept की clarity के लिए मैं इसको simple word में भी discuss करूँगी. Let's see what Aristotle has said about peripety. Peripety or reversal is the change in the fortune of the hero. The change or reversal in the situation is brought about by human actions producing the very opposite result to what was intended. Peripety or reversal. Peripety is the sudden or the unexpected change. Unexpected change क्या है? रिवर्सल, कि आप रिवर्सल इन अ सेंस कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा जो आपने सोचा भी नहीं है. द चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो. फॉर एग्जाम्पल, हीरो जो है, इफ वी सी द लाइफ ऑफ ईडिपस रेक्स, अगर आपने ईडिपस रेक्स पढ़ा है तो वो एक किंग जब आता है और वो रिडल सॉल्व करता है तो सब समझते हैं कि ही इज़ लाइक द गॉड, कि उसे अल्लाह ने भेजा है हमारी मदद के लिए और उसने हमारी जो परेशानियां वो ख़त्म हो जाएंगी. बट जब प्लेग आता है तो फिर ये रियलाइज होता है कि प्लेग जो है वो ईडिपस रेक्स की वजह से आया, बिकॉज ही इज़ द मर्डरर ऑफ किंग लायस. वो एक मर्डर होता है जिसकी वजह से अर्थ गॉडेस जो है वो नाराज हो जाती है, और प्लेग भी उसी की वजह से आता है. तो एक रिवर्सल आया ना, एक चेंज आया, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया उस हीरो की फॉर्च्यून में, कि जो अपने आप को किंग समझ के आया था और लोगों ने उसको वेलकम किया था, और बाद में उसी की वजह से परेशानियां आती हैं. तो हमारे जो ड्रामाज हैं, जो ट्रेजेडीज़ हैं, उसमें रिवर्सल और पेरिपिटी का एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से स्टोरी में ट्विस्ट आता है. सो द चेंज और द रिवर्सल इन द सिचुएशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमन एक्शंस प्रोड्यूसिंग द वेरी ऑपोजिट रिजल्ट टू व्हाट वाज इंटेंडेड. आपने वो सोचा भी नहीं होता जो रिजल्ट होता है. अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी चेंज हो जाती है ह्यूमन एक्शंस की वजह से. आप समझ रहे होते हैं कि ये एक्शन नहीं लेंगे, या जो हीरो है वो कॉवर्ड है, वो इतना ब्रेव नहीं है और वो ये सब कुछ नहीं करेगा. लेकिन जब वो फाइटिंग होती है और वो सबसे फाइट करता है और जीत जाता है, तो ये एक सडन चेंज होता है. ह्यूमन एक्शन की वजह से उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज पेरिपिटी. The next one is anagnorisis. Anagnorisis is the discovery, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्लियर किया था. Recognition is the change from ignorance to knowledge. For example, the knowledge of the true identity of the persons or the truth of fact or circumstances. Discovery or anagnorisis. Anagnorisis is the recognition, is the change from ignorance to knowledge, कि आपको नहीं पता होता और आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, आपको असलियत बताई जाती है, आपको हकीकत बताई जाती है कि ऐसे बात नहीं, ऐसे थी. तो वो जो recognition है is like the discovery, और वो एक एलिमेंट है जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है. So the knowledge of the true identity of the person or the truth of fact or the circumstances,
एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, अबाउट द पर्सन भी हो सकते हैं, अबाउट द सिचुएशन भी हो सकते हैं, कोई भी हकीकत जो उस स्टोरी में ट्विस्ट क्रिएट करे और एक न्यूनेस लेके आए, ट्विस्ट लेके आए, वो एनाग्नोसिस कहलाएगी. फाइन. So the effect of tragedy is greatest if the peripety and discovery come together in Oedipus, the king of Sophocles. इन्होंने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, ग्रीक प्ले है Oedipus Rex, उसकी एग्जाम्पल दिया है, like the effect of tragedy is greatest if the peripety and discovery come together. Peripety means the reversal, the change in the fortune of the hero, and discovery, the recognition of truth. अब वहाँ पे ये दोनों चीज़ें कैसे आती हैं कि ईडिपस रेक्स की फॉर्चून चेंज होती है और वो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में आता है एक सच से बचने के लिए, अबाउट हिज आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ, मैं इस चीज़ से या अपनी फेट से छुप जाऊँ, उससे बच जाऊँ और किसी और कंट्री चला जाऊँ. But the discovery comes when he came to know that the king and the queen of that country are his own parents. उसके अपने पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स हैं, तो ये एक डिस्कवरी होगी. ठीक है. और पेरिपिटी जो होगी वो उसके फॉर्चून में जो ट्विस्ट आया, जो चेंज आया, उसके अपने एक्शन से, उसने अपने जो रास्ते में किंग लॉयस का मर्डर किया, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैरापिटी. उसकी फॉर्चून में चेंज लेके आ गया ना. तो ये पैरापिटी और एनाग्नोसिस है. ठीक है. और एग्जाम्पल इन्होंने सोफोक्लीज की दी है. सो अरिस्टोटल प्रेफर्स द कॉम्प्लेक्स प्लॉट फॉर इट इज मोर इफेक्टिव इन कैप्चरिंग अटेंशन. सो अरिस्टोटल ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लॉट को बेस्ट प्लॉट कहा है और उसने उसको प्रेफर किया है सिंपल प्लॉट के ऊपर, बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव, इट इज़ मोर प्रोडक्टिव, इट इज़ मोर अट्रैक्टिव देन सिंपल प्लॉट. एक थर्ड पार्ट भी है जिसको बहुत बाद में पोएटिक्स में जाके अरिस्टोटल ने डिस्कस किया है, और सफरिंग को भी प्लॉट का इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा है, जिस तरह से पैरापिटियो और एनाग्नोसिस को कहा है. सो सफरिंग, the kind of disaster or the misfortune which is peculiarly suited to produce the proper pleasure of tragedy, which is the release of such emotions as pity and fear. sufferings क्या है कि जब पैरापिटी और एनाग्नोसिस के बाद एक थर्ड एलिमेंट आता है सफरिंग का, जब वो सच मालूम होता है, चेंज ऑफ फॉर्चून के बाद ट्रूथ डिस्कवर होगा, ट्रूथ डिस्कवर होने के बाद सफरिंग्स आएंगी इन द लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट. जो आपका हीरो होगा उसकी लाइफ में कुछ सफरिंग आएंगी जो उस ह्यूमन एक्शंस पे जो उसने अपने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किए होंगे, अपने जो आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि नहीं, मॉरल कैरेक्टर होगा, उसकी मोरालिटी के ऊपर कुछ फ्लॉ होगा, तो उसके ऊपर जो भी वो एक्शन करेगा तो उस तरह से उस पर सफरिंग्स आएंगी, अ काइंड ऑफ डिजास्टर और मिसफॉर्चून. जो वो डिजास्टर, वो मिसफॉर्चून जो उसकी उस एक्ट को, उस एक्शन को जो उसने किया होगा उसके रिएक्शन में आएगा, उसके रिएक्शन में कुछ सफरिंग्स आएंगी. फॉर एग्जाम्पल ईडिपस की एग्जाम्पल ले लें. ईडिपस व्हेन ही केम टू नो द रियलिटी, जब उसको सच मालूम होता है कि वो उसके रियल पेरेंट्स थे और उसने अपने रियल फादर का मर्डर किया था और अपनी रियल मदर के साथ उसने शादी की थी, तो ये एक वो उसको सफरिंग की तरफ ले जाएंगी क्योंकि उसके अंदर मोरालिटी एंड ही नोज दैट ही हैज़ डन समथिंग वेरी हीनियस, बहुत बड़ा उससे गुनाह हुआ है, बहुत एक ऐसा गुनाह हुआ है कि अब उसका अजाला करना ज़रूरी है. तो वो सफरिंग जो होगी वो उसका रिएक्शन होगा, वो उस हकीकत के बाद जो उसको सच मालूम होगा उसके बाद जो सफरिंग्स आएगी. सो इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इस सफरिंग से ही जो आपकी ऑडियंस है वो पिटी और फेयर फील करेगी.
और यहाँ पे इडिपस की सफरिंग्स क्या आएंगी कि जब वो अपनी आइज़ को प्लक आउट करेगा और वो उस स्टेट से कहेगा कि मुझे बाहर भेज दें, और वो सारे अनाउंसमेंट्स जो वो कल्प्रिट के लिए कर रहा था, मर्डर के लिए कर रहा था, जब उसको पता चलेगा कि ही हिमसेल्फ इज़ द कल्प्रिट एंड ही हिमसेल्फ इज़ द मर्डरर ऑफ किंग लायस, तो वो सारी अनाउंसमेंट्स वो कहेगा कि उसको उस तरह से ही किया जाए, वो एक्शंस उसी तरह से लिए जाएं उसके ऊपर भी कि ही इज़ द मर्डरर। सो ये सफरिंग्स का जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लॉट, एंड इट प्रोड्यूस द प्रॉपर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी। आपको उससे पहले उस चीज़ को आप इंजॉय नहीं करते, उन सफरिंग्स को आप इंजॉय नहीं करते, उन सफरिंग्स के बगैर आप ट्रेजेडी को इंजॉय नहीं करते। तो ये प्रॉपर प्लेजर जो है वो देता है ट्रेजेडी में, एंड इट रिलीज ऑफ सच इमोशंस एज पिटी एंड फेयर, और ये क्रिएट करेगा पिटी एंड फेयर को, कैथारसिस को इन दैट ट्रेजेडी। इसका सफरिंग का जो पार्ट है दैट इज ऑन पेज नंबर 33 ऑफ चैप्टर 13, वाइल ये चैप्टर नंबर 10 से 12 में पेरिपेटी और डिस्कवरी जो है ये डिस्कस हुआ है। This is an element of complex plot and anagnorisis, and I hope this word is new for you. So I feel important to discuss this with you people. आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि इसको यहाँ पे डिस्कस किया जाए इन ईजी वर्ड्स। Anagnorisis is a Greek word. It means recognition in literary work. Recognition है from ignorance to knowledge. इसको हमने ऐसे पढ़ा है, ठीक है? So it is an essential part of the plot of tragedy, and it changes from ignorance to knowledge. Anagnorisis जो है वो कैरेक्टर की हो, सिचुएशन की हो, ऑडियंस को इग्नोरेंस टू नॉलेज की तरफ लेके जाता है। सो द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कवरीज in one attended by Peripetes, just like the discovery goes in Oedipus Rex. हमने Peripety को पढ़ा है, दैट मीन्स द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, के सिचुएशन किस तरह से, रिवर्सल मीन्स के टर्निंग पॉइंट है, उसको किस तरह से चेंज करता है। इडिपस रेक्स की स्टोरी मैंने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और उसको डिस्कस करने का इंटेंशन ही यही थी कि मैं आपको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकूं। तो इडिपस रेक्स अगर आपके माइंड में अभी है, इसको अदरवाइज आप देख लीजिएगा। इसमें पेरिपेटी और डिस्कवरी, पेरिपेटी मीन्स टर्निंग पॉइंट आता है ना। इडिपस जो अपनी सोच लेके चलता है कि ठीक है मैं कंट्री चेंज कर लेता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से दूर चला जाता हूँ ताकि मैं वो अपनी फेट से भाग रहा होता है ना, और चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है, वो अपने रियल फादर से मिलता है और उसका मर्डर करता है। तो ये सारी चीज़ें, ये टर्निंग पॉइंट्स थे ऑल दो, बट डिस्कवरी कहाँ पे हुई, जब उसको ट्रूथ पता चला, किंग लॉयस का और जुकेस्टा का ट्रूथ पता चला कि दे आर हिज रियल पेरेंट्स। तो ये डिस्कवरी थी, इसलिए पेरिपेटी और डिस्कवरी में एग्जाम्पल इडिपस रेक्स से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पे इसको डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। व्हेन अ मैसेंजर रिवील्स टू इडिपस हिज true birth, and Oedipus recognizes his wife Jocasta as his mother, the man he slew at the crossroad as his father, and himself as the unnatural sinner who brought misfortune on Thebes. क्योंकि उस सिचुएशन में जो कल्प्रिट था, जो मर्डर था, वो ईडिपस खुद डिक्लेयर होता है इन द एंड ऑफ दिस ट्रेजेडी, और उसको अपनी रियल आइडेंटिटी पता चलती है, उसको जुकेस्टा के बारे में पता चलता है, उसको अपने फादर किंग लॉयस के बारे में पता चलता है, और उसको उस मर्डर के बारे में पता चलता है। तो ये पेरिपेटी, डिस्कवरी एंड देन सफरिंग, जो एंड में इसका एक्ट होगा,
जब वो अपनी आंखों को प्लक आउट करेगा, तो ये सफरिंग्स में आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट और बेस्ट ट्रेजेडी है जिसमें आप पैरापिटी, डिस्कवरी एंड देन सफरिंग्स तीनों एलिमेंट जो है उनको यहाँ पे दिखते हैं, फील करते हैं। सो दिस recognition is the more artistically satisfying because it is accompanied by a peripety reversal and the shift in fortune from good to bad that moves on the tragic catastrophe. तो इसमें जो recognition है वो आपको सेटिस्फाई करती है, वो इस ट्रेजिडी को बेस्ट बनाती है। इसमें पैरिपिटी, सफरिंग्स और डिस्कवरी तीनों एलिमेंट मौजूद हैं। मैंने आपसे लेक्चर के मिड में व्हेन वी वर डिस्कसिंग एनाग्नोरिसिस, तब मैंने आपसे जिक्र किया था अबाउट इट्स काइंड्स। तो Aristotle gives 6 kinds of anagnorisis. There are 6 kinds of discovery. कौन सी हैं? The first one is recognition by means of signs or marks, and this is the least artistic kind. And the second one is recognition contrived by author, and the third one is recognition prompted by memory, and the fourth one is recognition through deductive reasoning, and this is the second best kind. And the fifth one is faulty reasoning on the part of disguised character. And the best kind, according to Aristotle, the best kind of anagnorisis is the sixth one, that is recognition through logical sequence of events in the play. So let's discuss all the sixth kinds of anagnorisis on the next slide. Now let's discuss the 6 types of anagnorisis in detail. In the previous slide, I just discussed the names of the 6 types of anagnorisis. पिछली स्लाइड में हमने सिर्फ 6 जो टाइप्स हैं हमने उनको बाय नेम पढ़ा था, बट इसमें थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस करते हैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी रिकग्निशन बाय मींस ऑफ साइंस और मार्क्स, और मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दिस इज द लीस्ट आर्टिस्टिक काइंड। ठीक है, इसको बहुत कम वैल्यू दी है इस टाइप की डिस्कवरी को, इस टाइप की एनाग्नोरिसिस को, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ पोइट। अरिस्टोटल कहता है कि जब हम recognition by means of marks और signs हों तो ये बहुत एक लेस इमेजिनेटिव बात होती है पोइट के लिए, कि उसने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं की, उसने सीक्वेंस को इस तरह से अरेंज नहीं किया, इसने कुछ निशानियां छोड़ दी हैं जिसको बहुत ये वेग होगा, बहुत एम्बिगुअस होगा समझने के लिए कि ये डिस्कवरी है या नहीं। एंड द एक्सटर्नल टोकन्स कुड बी मीन्स ऑफ रिकग्निशन। जो एक्सटर्नल सिचुएशन है जिसको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी फील होती है, तो उसमें वो टोकन्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसको लीस्ट आर्टिस्टिक काइंड कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है पोइट की और एक्सटर्नल टोकन यूज़ हुए हैं। क्लियर? And the second type is recognition contrived by author. What is contrived? Contrived means deliberately created rather naturally created. कि उसको एक उसमें naturally created recognition नहीं है, natural नहीं है। ठीक है, उसको deliberately create किया जाता है, जिस तरह हमारे कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जिसमें आपको कभी फ्लैशबैक टेक्निक से, कभी किसी और साइन से, मार्क से आपको बताया जाता है कि यहाँ पे इस टाइप की डिस्कवरी है। या आपने कैरेक्टर देखा होगा जब वो सोचने लगते हैं तो एक और सीन उसके माइंड में आता है जिसको हल्का सा ब्लर करके दिखाते हैं ताकि ऑडियंस को पता चले कि ये इस तरह से इसने सोचा था, ये इस तरह के ख्याल कर रहा था।
तो ये एक लीस्ट आर्टिस्टिक काइंड है, जिसमें ऑडियंस को आपको बताना पड़े कि इसके माइंड में क्या था, और उसका आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो डायलॉग्स हैं, उससे उसका कोई कंसर्न नहीं था, वो उसके थॉट्स की बात थी। तो इसलिए इसको डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है, ठीक है। नेचुरली मतलब उस सीन्स के अकॉर्डिंगली आपको समझ नहीं आता, लेकिन एक डेलिब्रेट एक्ट होता है पोएट का ऑडियंस को समझाने के लिए। Poet is unable to fit anagnorisis into logical sequence of plot and seems extraneous. Extraneous means the outsiders. हमें external token की यहाँ पे help चाहिए, और logical sequence जो है वो fit नहीं बैठते उस discovery में। जैसे कि मैंने आपको example दी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स, कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग, कुछ एक्स्ट्रा मोमेंट उसमें ऐड करने पड़ते हैं उस डिस्कवरी के लिए कि अच्छा यहाँ पे इस कैरेक्टर की ये सोच थी, तो उस सोच को दिखाने के लिए ऑडियंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल्स उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड recognition is prompted by memory. अब it depends, this discovery depends on the memory. So a disguised character may be presented with some memory from the past. कि बाद में बताया जाता है अच्छा इस एक कैरेक्टर, डिस्गाइज्ड कैरेक्टर मीन्स कि वो कैरेक्टर जिसका उस स्टोरी से कोई नो हाउ नहीं है, कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसको एक कैरेक्टर जस्ट फॉर द डिस्कवरी उसको लाया जाता है और उसके थ्रू कहानी का एंड किया जाता है, या कोई भी ट्रूथ है, कोई भी रियलिटी है वो बयान की जाती है उस कैरेक्टर का जिसका उस कहानी में कोई मरकजी किरदार नहीं है। तो इस रिकग्निशन को, इस एनाग्नोरिसिस को भी अरिस्टोटल ने एक लीस्ट आर्टिस्टिक काइंड ही कहा है। बट द फोर्थ टाइप इज वन दैट इज द सेकेंड बेस्ट काइंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। वो क्या है? दैट रिकग्निशन थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है यहाँ पे? डिडक्टिव रीजनिंग इज like when someone get through the general idea, कोई भी knowledge है आप general idea से start करें and then reaches to the specific conclusion, और एक बहुत particular point पे जाएं कि अच्छा इसका ये मतलब था, जैसे the only reasonable conclusion of agent's thought। अब ये recognition means कि एक general perception पे start होगी, एक जनरल आइडिया है, बट इट रीचेस टू द पर्टिकुलर पॉइंट। इसका एक खास मकसद होगा उस रिकग्निशन का, उस प्ले में, जो एक जनरल तरीके से स्टार्ट होगी बट पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड होगी। सो दिस रीजनिंग इज द सेकेंड बेस्ट काइंड। एंड द फिफ्थ वन इज फॉल्टी रीजनिंग ऑन द पार्ट ऑफ डिस्गाइज्ड कैरेक्टर। Means the disguised character might unmask himself by exhibiting knowledge that only he could know। एक ऐसा कैरेक्टर, जैसे हमने पहले डिस्गाइज कैरेक्टर की बात की थी, जो सिर्फ उस मेमोरी को या उस एक्शन के लिए उसको ट्रेजेडी में इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे भी फॉल्टी रीजनिंग्स मीन कि वही डिस्गाइज कैरेक्टर जो खुद को अनमास्क करेगा यहाँ पे फॉर एग्जिबिटिंग नॉलेज दैट ओनली ही कुड नो। सिर्फ उस पर्सन से वो नॉलेज वो ये जानता था, और उसको फिर बीच में ऐड करके ऑडियंस को बताया जाता है कि कहानी में ये ट्विस्ट है, ये डिस्कवरी है, या ये नई बात है, ये टर्निंग पॉइंट है उस कैरेक्टर के थ्रू, जो कैरेक्टर एक डिस्गाइज्ड कैरेक्टर है, मीन्स नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्रेजेडी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द लीस्ट आर्टिस्टिक काइंड। But sixth kind is the best kind of anagnorisis according to Aristotle. Aristotle ने जिस kind को praise किया है, जिस kind को appreciate किया है, that is the sixth one, that is the recognition through logical sequence of events in the play. Recognition through logical sequence of the events in the play. वो logical sequence set किया जाता है जिसमें audience को खुद ब खुद उस डिस्कवरी, उस नॉलेज, उस एक्शन के बारे में पता चले,
उसके लिए आपको किसी भी अनडिस्गाइज्ड कैरेक्टर, अनमास्क कैरेक्टर और मास्क कैरेक्टर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स सेट करना पड़ता है, जिससे वो खुद ब खुद ऑडियंस वो एनाग्नोसिस ले लेते हैं, डिस्कवरी ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट काइंड। सो इसकी लाइन देखिए, राइजिंग फ्रॉम द इंसिडेंट्स व्हेन अ ग्रेट सरप्राइज कम्स अबाउट थ्रू अ प्रोबेबल इंसिडेंट्स। हम लोगों ने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था ना, कि जो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं, तो वो ऐसे इंसिडेंट्स जो एक सरप्राइजिंग भी हो और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंगली भी वो रिएक्शंस हों, वो एक्शन बेस्ड हों, उन इंसिडेंट्स को जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कहा जाएगा। और ऐसी रिकग्निशन जो उस लॉजिकल सीक्वेंस पे बेस करे इज द बेस्ट काइंड ऑफ एनाग्नोसिस। और यहाँ पे भी एग्जांपल इडिपस रेक्स की ही है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने प्लॉट को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। प्लॉट की टाइप्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स के फिर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है। और आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा।